everybody. I'm Sophie Chaudhary, and a very warm welcome to our special show, A Time for Nature. मैंने बहुत सारे शोज होस्ट किए हैं, लेकिन आज का शो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है. क्यों? क्योंकि आज का दिन बहुत खास है. Today is World Environment Day. Now I know lots of you out there are thinking हर किसी चीज के लिए एक दिन होता है. Mother's Day, Father's Day, Friendship Day. तो चलो एक और ही दिन से. और आप में से और लोग सोच रहे हैं कि एक और दिन की क्या जरूरत है यार, लेकिन जरूरत है दोस्तों. And I'm sure you can understand why. I mean, look at us. The whole world is in lockdown. Why? Because in this rat race valley life, we have forgotten one of the most important things. Hamara planet, Hamara environment, and the importance of coexisting. We all need to protect each other. We need to look out for all the living organisms on this planet, and we really have to value the biodiversity of it. Now, because of everything that happens in this environment and this world, years ago, the United Nations decided that to get the message across, they will consider 5th June as World Environment Day. और हर साल एक अलग थीम होता है. इस साल का थीम है biodiversity. So guys, let's pay attention, let's change our attitude, and let's do everything we can to protect our environment. Now, आज का शो एंटरटेनिंग तो जरूर होगा, साथ ही साथ आपको एजुकेट करेंगे, लेकिन आई हैव अ वेरी स्पेशल पार्टनर इन क्राइम हु इज जॉइनिंग मी, अ वंडरफुल सिंगर, composer, an incredible human being, a social activist, and somebody who's always at the forefront when it comes to the environment. और हाँ, उनकी आवाज तो पूरी तरह से जादू करती है. Ladies and gentlemen, मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं, and I'm so excited. It's the one and only Shan. Welcome to the show, Shan. I'm so excited to be co-hosting with you today, and it's such an honor to have you here, as always. Now, Sophie, the pleasure is all mine, and I must tell all our audiences that I've always had the highest respect for Sophie, not only as such a lovely individual, personality, but also a fantastic singer performer. And Sophie, it's going to be fun, really. I can feel it already, co-hosting with you. And also the 5th of June and World Environment Day. This day is such a special day for all of us. क्योंकि चाहे हम जिंदगी में चाहे जो कुछ भी करें, the environment is special for all of us. And I personally believe, yes, that for me, the environment is very special. Being a musician, music is in the environment, and that's really what inspires us always. I'm absolutely one of those people who's always at the forefront. In fact, आप हमेशा आगे आते हो to contribute in some way. And in fact, over the past couple of years, you've even done songs, चाहे वो Tick Tick Plastic when it was about banning plastic, or Hawa Aane De when it came to air pollution. You came up with amazing songs. और guys, अगर आपने ये गाने नहीं देखे, नहीं सुने, then please do. Amazing work. Thank you so much, Sophie. Of course, ये जो गाने हैं, it's teamwork, and a lot of the credit goes to Asif Bhamla from the Bhamla Foundation, and all of us have to do our part when it comes to nature. That's so important. Absolutely, you must answer nature's call. Yeah, that too. No, I mean, yeah, that too. But what I really mean is, just look at what's happening in the world. I mean, the natural calamities, the amount of species that are going extinct. I feel like the whole balance of the world is upside down. And I really feel like nature is literally screaming at us, telling us to get our act together and just find a way to coexist and restore that balance. So true, Sophie. Imagine, every year we have this show in such a big, एक बहुत ही बड़े पैमाने में हम इस शो को मुंबई के जो काट रोड एम्फीथिएटर है वहाँ करते हैं. और इस साल जो पैंडेमिक हुआ है उसकी वजह से ये पूरा ऑनलाइन हो चुका है. लेकिन definitely we still have to carry on. हम रुक नहीं सकते. We have to make it happen, because the message is what is more important. The world should realize, and we should all, as of course this is more India centric, and also the youth of India, all of us who the world is in our hands, we have to make the best of it. And जो हो चुका है, but we have to take nature more seriously, and we have to do our bit for sure. बिल्कुल आपने सही कहा. हम कभी हार नहीं मानते. ये इवेंट हमेशा लाइव होता है as like a proper event out in Bandra, and you will always see so many celebrities showing up. लेकिन because of this lockdown, और क्योंकि कुछ 3 महीनों से हम में से बहुत सारे लोग या अकेले या अपने परिवारों के साथ घर में हैं, लॉकडाउन में हैं, ताकि हमारा जो ये कोरोना वायरस है और ना फैले,
that's why this year this event has actually gone on and become an online digital event. It's really something new जो हम कोशिश कर रहे हैं. It's a first of its kind. But I really hope we're all reaching out to you. And as we speak right now, Shan, I'm told that millions of people are logging in. So that feels really good. Thank you all so much for being here. बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे लगता है कि हमारे लिए this could be one of the biggest audiences that we've ever performed for. True. Sometimes, sometimes the situation actually, जिसे कहते हैं ना, मजबूरी का नाम गांधी जी हो चुका है. और सब हमसे जुड़े हैं from not just जब हम live करते थे तो of course it was only, Bandra and its surrounding suburbs, but now across the world people are watching us. तो इस opportunity का मैं पूरा फायदा उठाना चाहता हूँ सोफी, और मैं सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये क्या काम होता आया है इतने सालों से. भामला फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट मिलके हर साल जो कमाल का काम करते आए हैं, not just at the Carter Road Amphitheatre, but also across India, the various activities that have been happening for World Environment Day. I think we should all have a look and देखिए क्या क्या कमाल का काम हुआ है on World Environment Day. Wow, that is seriously impressive. That's amazing work, right, Shan? Bilkul, Sophie, really. And, it takes a lot of hard work to put all this together. And there's that one man who's been relentless. He's just been, and not just from, ये हम तो फिर भी आपको जो दिखा ये पिछले 3-4 सालों की बात थी, लेकिन literally पिछले 22 सालों से, he's been that champion about environment. जब ऐसा टाइम था जब लोगों को environment के बारे में इतना, they were not really that keen or interested. There were other issues that they thought were more burning, more important. But since then, he's been championing this cause. I want to say, हर movement, हर revolution एक आदमी से शुरू होती है, and he is not just a humanitarian, but a social activist as well. And he's even been awarded by the government of India the National Green Crusader Award. He's done so much incredible work. So, Shan, I'm going to leave it to you to give the big build up to the man who's really responsible, the driving force behind this. No, of course, Sophie, I mean, you said it all. Yes, he is really the Green Crusader, and he's relentless. मतलब जब वो ठान लेते हैं ना कि करना है. In fact, even this year, we were all, sort of pessimistic. How will we pull this off in such a situation? He alone insisted and said, no, we will not back off. We will do it, and it'll be bigger and better than ever. So without further ado, let us welcome the man himself, President of Bhamla Foundation, the Green Crusader, Asif Bhamlaji. Thank you so much, Sophie. Thank you so much, Shan, for this fabulous introduction. You all have been amazing throughout in the entire endeavor in helping the Bhamla Foundation, the Ministry of Environment, to ensure that this world environment gets out to be what it is now today. As we all know, every year we have the World Environment Day, and we celebrate the same on Carter Road. It's been 10 years we've been doing this on Carter Road, but unfortunately this year, due to the lockdown, due to COVID-19, we're all celebrating this great day like we celebrated Eid from our own houses.
across Carter Road, there used to be a mammoth crowd with thousands of people coming there to celebrate this great Earth Day or this great World Environment Day. But now, with the given circumstances, still, our celebration towards the Earth, our love for the Earth, our affection for the Earth does not reduce. In fact, from our homes, we can talk more about environment, we can preach more about environment, and that's what Bhamla Foundation, in support with the Ministry of Environment and in coordination with the United Nations Development Program, is come out with. As we all know, the theme for this year is biodiversity. I am sure that everybody is aware about the significance of this year's World Environment Day. A lot have been spoken by a lot of influencers, a lot of celebrities have spoken about this. Yet I want to say, my friends, all is not lost. If you see, this catastrophe has been destructive globally, but for the environment, it has certainly done better as far as the environment is concerned. If you see the conditions of the air, the pollution levels have fallen down. In places like Delhi, where there used to be highest pollution levels, the levels of pollution have fallen down. The waters are cleaner. We can see dolphins in the seas. We can see the species living in a much healthier and congenial atmosphere. The ozone layer has improved. So friends, what I'm trying to say is that obviously we don't welcome this catastrophe. The pandemic has certainly caused huge loss and damage to the world globally, but it certainly has taught us a lesson. And a lesson is that biodiversity, which is this year's theme of the World Environment Day. I pledge and I wish that all, let's come together on the World Environment Day. The Bhamla Foundation, together with the Ministry of Environment and the support of the United Nations Environmental Program, has come out with a beautiful campaign, Dhak Dhak Dharti. It's a musical campaign like last year. This year also we've come out with the same, because music has a greater outreach, and we are fortunate to have great influences like Akshay Kumar. We've got great influences like Bhumi Pednekar. We've got Tapsi Pannu. We've got Shan. We've got Swanand, who's written the song beautifully. We've got Shamak, who's choreographed this number. And we've got a number of other singers and influencers who've been part of this great endeavor. And like every day, through music, we would like to send the message of diversity across globally. Bravo, Mr. Bhamla. हमने आपको पहले ही कहा था कि he is a one-man crusader. लेकिन अब जिनका introduction मैं करने जा रही हूँ, well, he's no stranger to the digital medium. Under his leadership, Hungama Digital Media Entertainment is considered to be South Asia's biggest mobile digital entertainment company. Ladies and gentlemen, he is really been amazing in this endeavor, right, Shan? Very rightly said, Sophie. Really, and you know, the amazing thing is, with all these commitments, all this schedule, he still has time and commitment for the environment. And honestly, उनके support के बगैर आज का भी ये event बिल्कुल नामुमकिन था. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. Amidst this lockdown, he has really supported us. So it's such a privilege to introduce the CEO of Hungama Digital Media Entertainment. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Neeraj Roy. My dear friends, it gives me a great sense of pride to be a part of the United Nations World Environment Day event and speak with you today. It's also a bittersweet feeling where on the one hand, I'm glad to communicate with you and millions of those who've logged in, whilst on the other hand, the message is grim. Our planet and our very survival are in great peril. But it is we who are to blame for this tragedy. Even though it may have been unintentionally. We've been ravaging forests, poisoning our river oceans with plastic, garbage, and other harmful chemicals, destroying the natural habitats of other living beings, and indeed the biodiversity of this beautiful planet. Thankfully, the United Nations, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Asif Bhamla Foundation, and all of us at Hungama Digital Media
have taken up the task of spreading awareness about the dangers that threaten our environment. I pledge my wholehearted support to this cause. Since the very beginning, we at Hungama Digital Media strove to create an environment that was friendly and healthy for work and for our employees, clients, and partners. So when I was approached to organize an online digital event for the United Nations World Environment Day, I realized that we had a much larger role to play this year in the world to help make an environment that is friendly and is peaceful for everyone's coexistence. Hungama has been associated with this event for about 4 years now, an initiative of my friend Asif Bhamla, the founder of the Bhamla Foundation. The award-winning singer and musician Shan and lyricist Swanand Kirkire have been associated with the cause for many years. And each year, they produce a fabulous song which lays the bedrock of the theme that the United Nations has set out for itself. 2 years ago, it was about Beat Plastic. Last year, it was about air pollution. And this year, it is on biodiversity. So it is my appeal that each of us, we try and learn as to how we can preserve the biodiversity. I also urge the business community to understand the value and disclose their impact and dependency on nature. They need to support efforts by the government to invest in land management of watershed areas, to improve water quality and quantity, and to achieve benefits for people and for ecosystems. It is really high time that corporate India looks at this in terms of how they produce, how they distribute, how they consume and dispose of resources in ways that optimize resource use, minimize greenhouse gas emissions, and avoid harmful chemicals that hurt biodiversity. I would urge that we invest in research and development of climate smart technologies for our businesses, incorporate sustainability concerns at the earliest stages of planning. These are a few of my suggestions that will help businesses operate in an environment that's friendly and will ensure longevity of life of our beautiful planet. Before I end, I must place on record my immense gratitude and thanks to my good friend Akshay Kumar, who has supported this cause now for the second year in a row. This year was all the more difficult, wherein during the COVID-19 pandemic and complete lockdown conditions, the team composed the song on the theme of biodiversity called Dhak Dhak Dharti Bole. Akshay has been a true environmentalist, and we cherish his support and love. I also wanted to thank my good friend Adnan Sami for his love and support, and so many others who have been associated with the cause, from Salim Suleiman, Kapil Sharma, Yo-Yo Honey Singh, and the list is endless in terms of the love that we have received for this particular program. But I tell you one thing, this wouldn't have been possible without the wonderful team that we've had. My own colleague, Samini Paul, our wonderful director, and pretty much the captain of this entire event, Romanchak Arora, Tushar for the amazing animation, Sahir Bhamla, and of course, Asif Bhai himself. The number of sessions that we have had during the last 2.5, 3 months, I tell you, it's almost like a new way of working. And what is delightful is that, we're seeing the benefits of this coming around and being able to share it with the millions who are now watching this. I thank the millions of you who have logged in from various parts of the world to show your love for this unique show that we have put together for you in these extremely challenging times. I'm positive that this show will not only enlighten you about the ways to create a friendly environment for all living beings, and also end up entertaining you. After all, biodiversity, very simply put, is what? Jio और जीने दो। दोस्तों, जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट इशू पे स्टैंड लेते हैं तो कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आता है जहां हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन याद रखें, हम कभी अकेले नहीं होते। बिल्कुल सोफी, जैसे आज भी आपको हम अकेले नहीं होने दिए। मैं आगे आपके साथ जुड़िए।
But yes, of course, on a serious note, जब आप शिद्दत से दिल से कोई चीज को करने की ठान लेते हैं तो लोग जुड़ जाते हैं, कारवां बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे इस शुभ काम में हमारे साथ कौन-कौन से खास लोग जुड़े हैं। Have a look. Just a fit body does not mean that we are living a healthy life. The quality of our life also depends on the quality of the air that we breathe. We tend to take Mother Nature for granted. Let's not do that. It cannot be one-way traffic. It's time for us to give back to Mother Nature. Many of us in our everyday lives use items of plastic unthinkingly, and we can change that. Like having our water in glass bottles, which is something that I try to do my little bit for the environment. Everyone's baby steps will make a huge difference. Clean air is our right. Air pollution exists. It's a real threat, and we all should be concerned about it. According to the World Health Organization, toxic air levels are responsible for the death of 7 million people all over the world every year. 9 out of 10 people worldwide breathe polluted air. And 13 out of 20 most polluted cities in the world are in India. The issues are innumerable, whether it comes to lack of trees, fresh oxygen, being able to have a clean environment to live for our future. Dangerous levels of polluted air claim more lives as compared to the other diseases like high BP, diabetes, malnutrition. It is more than our duty and responsibility to protect nature, and we all know which efforts to be done. Well, there are many things that you could do. Recycling plastic, making sure you don't waste water, planting trees. Let's try and do our bit by using carpools, making sure we use more of public transport, bikes, or combining errands and reduced trips. We should also walk whenever possible. हमने तय किया है कि सन 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को हम अपने भारत से पूरी तरह से समाप्त करने का गंभीरता और गहराई से प्रयास करेंगे। So guys, do take good care of yourself and our planet too. सोफी, अब वक्त है उनसे मिलने का जो हमेशा हमें साथ दिया है। I know he's a terrific human being, why just a dancer, why just a choreographer, and doston ka dost hai. He's always been a friend to us. So absolutely, he is a multi-talented artist, a dancer who defies gravity, a choreographer with a vision, and he has quite a voice. And you know what? He's taught his cool moves to amazing artists like Varun Dhawan, Shahid Kapoor, Sushant Singh Rajput, and many, many more. मुझे लगता है शान शायद तुमने भी कुछ moves उनसे सीखी हो। मैं डांस करने लगूंगा ना सोफी, तो वो बेचारा शामक भूल जाएगा डांस क्या है। So I spare him that. But of course, talking about Shamak Davar and talk about what he's going to be bringing on for all of us to watch and enjoy is something so very special. ये एक गाना है जिसने, we also know Shamak as a wonderful singer too. तो इस गाने को उन्होंने खुद कंपोज किया है और गाया भी है। गाने का नाम है सुन लो दिल की धड़कन, और शामक दावर के साथ इस गाने में फीचर हो रहे हैं द शामक विक्ट्री टीम इंडिया एंड द शामक विक्ट्री टीम कनाडा। Wow, this is going to be amazing. So ladies and gentlemen, get ready to clap your hands and tap your feet as the power of Shamak Davar is ready to overtake you. चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे आगे निकलेंगे हम। चाहे हमको कोई रोके, फिर भी रुकेंगे ना कभी हम। ये दिल जान है हमारी शान, हिंदुस्तान हमारा, इसे जान लो पहचान लो, ये गुलसिता हमारा। हम कल भी थे, हम आज हैं और कल भी रहेंगे। हमें जान लो पहचान लो, हमसे है ये जमाना। दुनिया ये तेरे कैसे नजारे, कहीं पे तूफान कहीं सितारे, रुकेंगे फिर भी ना हम। सुन लो दिल की धड़कन, समझो
As expected, दोस्तों, what a fantastic performance. शामक दावर at his best as always. और जब शामक दावर और बच्चों की कॉम्बिनेशन एक साथ आती है ना, तो बात ही कुछ अलग हो जाती है. नन्हे मुन्ने बच्चों ने कमाल कर दिया. सुन लो दिल की धड़कन. Fantastic song, fantastic performance. बाकी दोस्तों, ये जो प्रकृति है, ये जो एनवायरनमेंट है, हमारे लिए क्या कुछ नहीं करती है. एंड हम है कि इन्हें प्लास्टिक, प्रदूषण से बिगाड़ रहे हैं. तो हम कब सुधरेंगे, कब ये माहौल बदलेगा? That is what is biodiversity all about. We have to save the biodiversity of our country. And Shamak Davar has been a crusader on this path for the longest time with us. हमेशा हमारा साथ उन्होंने दिया है. So I'm really, really thankful. Hats off to Shamak Davar and his dance foundation. So friends, it's really about time that we all show gratitude towards Mother Nature, towards our environment. और ऐसी ही कुछ सोच, कुछ बातें लेकर कुछ सेलेब्स आपसे मिल रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं. तो आइए उनसे मिलते हैं, सुनते हैं उनकी बातें. प्रगति की भूख ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है. पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, हमारा पानी सूख रहा है, हमारा खाना खत्म हो रहा है, अनेकों बीमारियां फैल रही हैं, हम हमारे जंगलों का विनाश कर रहे हैं. और इस एनवायरनमेंट का जितना हम हिस्सा हैं, ह्यूमन बींग्स हिस्सा हैं, उतना ही और बहुत सारे स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स भी हिस्सा हैं. और हमारी नेग्लिजेंस की वजह से काफ़ी सालों तक ये सफ़र करते हुए या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. अपने धरती में अपने अलावा बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं और जिनका इस धरती पर रहना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से अपना नेचुरल बैलेंस बना है और जिसकी वजह से आप में हम सब जिंदा हैं. All species of living organisms have the right to live on this planet. But our greed and disregard for Mother Nature has resulted in catastrophic consequences for all of mankind. The COVID-19 pandemic is our karma. Yet, all is not lost. Let us amend our past wrongs and start afresh by conserving the biodiversity of our beautiful planet. Protecting biodiversity ensures that we regulate climate, ensures we have water to drink, ensures we have better food security, ensures that we have better security for livelihood and lives and health. The coronavirus recently has shaken us all up. Let's not wait for that day when the planet itself shakes us all up. कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है और ये सागर कोशिशों का सागर है और उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट कोशिश बामला फाउंडेशन कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के सहयोग से. So friends, in our effort to save and preserve our planet, we are not alone because we have such a diverse range of scenic landscapes, flowers, plants, animals, living organisms और ऐसी biodiversity और कहाँ मिलेगी? Well, nowhere else in our solar system. So let's try and preserve the versatility of life on our planet. अब जो performers आने वाले हैं, they're really special. When I talk about lifting spirits, I'm not talking about this kind, I'm talking about the pure, soulful kind. This duo has given music for amazing films like Rab Ne Bana Di Jodi, Fashion, Iqbal, Band Baja Barat, Chak De India, and many, many more. They are supremely talented. They are huge on the live show circuit. Ladies and gentlemen, here with an unplugged performance just for you, please welcome Salim Sulaiman. कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो वार वार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चिर के मंजिलों को चीर ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी.
से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं तेरे नाना तेरे नाना, ओम तो ना तेरे नाना तेरे, तुम तो ना तेरे नाना तेरे नाना, तुम तो ना तेरे नाना तेरे। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। तो ना तेरे नाना तेरे नाना, ओम तो ना तेरे नाना तेरे। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। ओम तो ना तेरे नाना तेरे नाना, ओम तो ना तेरे नाना तेरे। राह पे कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। ओम तो ना तेरे नाना तेरे नाना, ओम तो ना तेरे नाना तेरे। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। ओम तो ना तेरे नाना तेरे नाना, ओम तो ना तेरे नाना तेरे, ओम तो ना तेरे नाना तेरे नाना, ओम तो ना तेरे नाना तेरे। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। Well, guys, I'm totally blown away and I hope you're really enjoying the show. But आगे बढ़ने से पहले, I really want to thank the Asif Bamla Foundation and Hungama Digital Media Entertainment who've made today possible. And thank you for making me a part of such a special, such an important show. You know, I know you're being entertained, but apart from that, I hope you all take away one very important lesson.
सिंपल लेसन है, नेचर है तो हम हैं. So it's about time we learn to respect, nurture and acknowledge that. We have to coexist. So please guys, spread the knowledge, share the knowledge and let's really try to make a difference. And in the meanwhile, let us entertain you. लेकिन अब मैं एक नहीं बल्कि जी हाँ दो रैपर्स इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ जिन्होंने अपने स्वैग से देश में पूरी तरह से हंगामा मचाया हुआ है. And the one coming up first, ladies and gentlemen, is the one, the only Yo Honey Singer. Yo Honey Sing, Loca. मैं हूँ पीता, सुन लो सेनोरीता, अपनी मर्जी से जिंदगी जीता. मैं हूँ पीता, सुन लो सेनोरीता, अपनी मर्जी से जिंदगी जीता. स्टेप वन अपना बैग बनाओ, स्टेप टू सोना कोक मिलाओ, स्टेप थ्री यो का म्यूजिक बजाओ, मुझे कोई मेरा इलाज बताओ. किसी ने न रोका, किसी ने न टोका, बेबी मैं हूँ नाम का धोखा. मैं हूँ पूरा क्रेजी इन अंग्रेजी, हिला दूंगा दुनिया में हो गया औखा. होगी ये सारे मदिरा पान करो, खत्म होने न पाए दो जाम भरो. मेरे नाम करो जो भी काम करो, सारे आम करो. मेरे नाम करो जो भी काम करो, सारे आम करो. ओ ओ ओ मुझे मिलाने दो, पीनी है पिलाने दो. ओ ओ ओ फल बजाने दो, धरती को हिलाने दो. किसी ने न रोका, किसी ने न टोका, बेबी मैं हूँ आग का धोखा. पूरा क्रेजी इन अंग्रेजी, हिला दूंगा दुनिया से हो गया औखा. क्या सोचना है लोगों का, दारू पी ले हो जलो का, संगीत बजता यो यो का, तो हिलती है पूरी नाव का. धरती पे पार्टी तो धरती हिल जाएगी, पानी पे पार्टी तो लहरें भी आएगी. जो मैं ये नैया न पार लगाऊं तो कुड़ियां घर कैसे जाएंगी. रात से हो गया दिन, पी के वोडका कोला जिन, बेबी बॉडी को कर ले स्पिन, जैसे मछली तड़पे पानी बिन. तिनक दिन, तिनक दिन, मछली तड़पे पानी बिन. तिनक दिन, किसी ने न रोका, किसी ने न टोका, बेबी मैं हूँ आग का धोखा. मैं हूँ पूरा क्रेजी इन अंग्रेजी, हिला दूंगा दुनिया ये हो गया औखा. ना करी मैंने औखा. हमारी इस मदर अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशंस और आसिफ हमला फाउंडेशन के इस अभियान में मैं इनके साथ हूँ. Wow, दोस्तों, what energy, what style, what swag. That is what Yo Honey Sing is known for. Thank you, Yo bhai, for that super fantastic performance. दोस्तों, रैप के बेताज बादशाह हनी सिंह के इस रॉकिंग परफॉर्मेंस के बाद हम एक और परफॉर्मेंस की ओर जा रहे हैं, विच इज ऑल्सो रैप. लेकिन अब आप सोचेंगे कि रैप के बाद रैप, लेकिन दोस्तों जैसे रैप में भी सब जॉनर्स होते हैं ना, कि रैप की अलग अलग स्टाइल्स होती हैं. जैसे उसी तरह से जैसे कि बायोडाइवर्सिटी की जो हम बात कर रहे हैं, तो एक स्पीसीज होती है, उसमें भी सब स्पीसीज होती है. तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन. तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे जब नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगा. जो भी रैप है, बट उनका एक अपना स्टाइल है, उनकी एक सब जॉनर है रैप में, और उनका नाम सुनते ही आप भी बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे.
क्योंकि he is the emerging rock star in rather the emerging rap star MUA Bantai. Bantai, जबरदस्त performance. What is up? क्या बोलती सब लोग? MUA बंटाई, मालूम है ना क्या बोलती बंटाई की पब्लिक? मचाते आज पहला गाना जमकर. लेट्स गो. क्या चालू है मैं मेरे पार्टनर स्टूडियो में रहते हैं, दिन रात काम करे जमकर, बीट पे ऐसा कोई खड़े नहीं रहने का, चल छोड़े जमकर. मैं मेरे पार्टनर स्टूडियो में रहते हैं, दिन रात काम करे जमकर, बीट पे ऐसा कोई खड़े नहीं रहने का, चल छोड़े जमकर. I was living my life in the backstreets. People never call me when I was living in the sad days. That says you're the one who can make yourself. You're the one who can break yourself. So be yourself. Take a right, never take left. Life is a game, GTA, man, or a theft. But you gone, come on, tell me what's next. Tell me what's next. I'm ready for my day when I be riding on my vanity, smoking the pressure, can't be celebrated. Be calling on my phone, baby, whatever day they tell me. Be इतना अंग्रेजी काफी है भाई. मुंह में इनके चिदल काफी है भाई. दुश्मनी कम करो, सिल मारो मेरी एक हंसी तुम्हारे लिए काफी है भाई. इट चली करेगा तो फांसी है भाई. मिलकर बनता है क्लासी है भाई. तेरी अगली देखा मैंने खासी है भाई. जो मेरे पास वो तेरे पास ही है भाई. मेरे पास ही है भाई. मेरे पास ही है भाई. मेरा भाई कुछ खोटा है. बालकों को धुआं सीधा हवा में उड़ाए. छोटा दिखता हूँ पर हाथ में भाई. अबे जिसकी भी बारी है आने दे भाई. हम गाने के जरिए से सच्चाई बताए. हमें हाय. मैं मेरे पंटर शूट एक नंबर. मैं मेरे पंटर स्टूडियो में रहते हैं, दिन रात काम करे जमकर, बीट पे ऐसा मोए खड़े नहीं रहने का, चल छोड़े जमकर. एवरीबॉडी. मैं मेरे पंटर स्टूडियो में रहते हैं, दिन रात काम करे जमकर, बीट पे ऐसा मोए खड़े नहीं रहने का, चल छोड़े जमकर. चल छोड़े जमकर. सीधा शॉट जो भी हूँ सामने हूँ, सबसे अलग हूँ. मैं मेरे काम में हूँ, मेहनत का खाता हूँ, सबको बताता हूँ. मैं बेटा समय पे कभी नहीं आता हूँ. समय पे आने वाले चले जाते, जिनको कुछ आता नहीं हमको समझाते. जिंदगी पिक्चर है, फूल और काटे, खिलाता कोई नहीं है, सब अपने नसीब का खाते. To dog. Last song for the year. Get ready for 2019. 2019. तब तक के लिए क्या कर देगा सबको? मैं मेरे पंटर स्टूडियो में रहते हैं, दिन रात काम करे जमकर, बीट पे ऐसा मोए खड़े नहीं रहने का, चल छोड़े जमकर. मैं मेरे पंटर स्टूडियो में रहते हैं, दिन रात काम करे जमकर, बीट पे ऐसा मोए खड़े नहीं रहने का, चल छोड़े जमकर. एक नंबर. बहुत हार्ड. Love you all. Thank you so much. दूसरा गाना बजाते मचाते. Let's do this. What is up? क्या बोलते हैं सब लोग? MUA बनता है, मालूम है ना? नहीं मालूम है तो सुन. एक नंबर बचाएंगे. दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ. सब मुझे भाव दे रही फिर भी सबको बता रहा हूँ. तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ. तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना रहा हूँ. वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ. तुझे लीन बॉडी पसंद है, मैं हेल्दी खाने चला रहा हूँ. सुनने में आया है तू लंदन में रहती है. अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ. बचाएंगे everybody. सिचुएशन बड़ी रास्टी है. तेरा स्माइल बहुत हार्ड है, बाकी सबकी प्लास्टिक है. दूर खड़ी अच्छी नहीं लग रही तू मेरे पास, ठीक है. हाथ से खाता था तेरे लिए, खाना चॉपस्टिक से ऑप्टिक से, अलग अलग चश्मा लिया. पूछा तो मॉम स्टिक से मारी मुझे सदमा दिया. बोली कि तू प्यार में नहीं पढ़ना, लेकिन मैं पढ़ने लगा था. तेरी चाल सब कमाल, अक्सर आई रेजर गाल, सब बवाल हो जाएगा मेरे साथ रह के देख. तुझे कोई ना मिलेगा पूरे रास्ते में एक बंदा मेरे जैसा, तेरे जैसा देखो चाहिए. तू भी अपने पे फिदा तो एक नंबर सही है. दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ. सब मुझे भाव तेरी फिर भी सबको बता रहा हूँ. तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ. तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना रहा हूँ. वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ. तुझे लीन बॉडी पसंद है, मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ. सुनने में आया तू लंदन में रहती है. अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ.
बचाएंगे। नजर ने हथेली मेरी तेरे पे फसेली, तू दिमाग में छिपेली क्योंकि पटेली नहीं करती बीवी औरों की तरह। मेरा आज अभी अब और टुमारो भी तेरा, तेरे सामने में सीधा बाकी बनना में टेढ़ा। सब कहते बनना मत टेढ़ा, मेरे को तो खाने का पेड़ा तेरा जो मेरा, मेरा जो तेरा। उजाला भर डाला तूने तो अंधेरा ही नहीं है, बासमती टुकड़ा नहीं में लंबा राइस चाहिए। अपना लाइफ सही है, सबका लाइफ सही है, जिंदगी को सही तौर पे जीने वाला चाहिए। जो भी बात बोला मैंने सब बात सही है, छोड़ दूंगा देखो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रही फिर भी सबको बता रहा हूँ। तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना रहा हूँ। वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे लीन बॉडी पसंद है, मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ। सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ। Come on. बहुत हार्ड। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। मजा आया परफॉर्म करके आप लोग के साथ, बंटाई की पब्लिक और ऑल माय पीपल आउट देयर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। बट यस, दिमाग में ये भी रखना है मदर नेचर, मदर अर्थ की इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी की ख्याल भी अपने को ही रखना है, अपने को इस धरती का ख्याल रखना है। एंड ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए स्पेशली मैं आज आया हूँ एंड आई फुल्ली सपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशंस एंड आसिफ भामला फाउंडेशन फॉर दिस। इतना ब्यूटीफुल अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं लोगों के बीच में। आप भी बताओ, अपने आसपास के लोगों को बताओ कि इस धरती का ख्याल अपने को रखना है। तो यस, नो पोल्यूशन, नथिंग, बाकी जीव जंतु के साथ मिलके रहना है, जियो और जीने दो। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, पीस आउट। बहुत हार्ड। क्या बात है, जोरदार तालियां फॉर एमी वे बनता है। और मुझे ये भी याद है कि पिछले साल हमारे 5 जून के लाइव परफॉर्मेंस में एमी वे ने तूफान मचा दिया था। और आज भी, यू नो, इवन दो ही इज परफॉर्मिंग फ्रॉम होम, इट वाज एब्सोल्युटली फैबुलस। थैंक यू एमी वे बनता है। दोस्तों, सिर्फ एमी वे फैबुलस तो है ही, साथ साथ फैबुलस है मदर नेचर। जी हाँ, हमारा जो एनवायरनमेंट है, आप सोचिए कि इतने सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, इतने सारे अलग अलग जीव जंतु हैं, और उन सबको बैलेंस करके एक इकोसिस्टम को क्रिएट हुआ है। मदर नेचर ने क्रिएट किया है इस इकोसिस्टम को, जहां हर एक की अपनी अपनी किरदार है। और अगर एक भी अपना किरदार नहीं निभाता है ना, तो बैलेंस खराब हो जाती है। और हम एज ह्यूमन बीइंग्स, ये जो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हम कर बैठे हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे जीव जंतु हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या हो रही हैं। तो हमें इसे रोकना है और हमें मदर नेचर की जो बैलेंस है उसे फिर से परफेक्ट रखना है। तो इफ यू प्रॉमिस दिस, प्रॉमिस कर रहे हैं आप? चलिए, आपने भी प्रॉमिस कर दिया, तो मैं भी अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटूंगा। आई नाउ प्रॉमिस टू ब्रिंग यू अ ब्यूटीफुल वॉइस, जो खुद एक बहुत कमाल की सोशल वर्कर है, बहुत बचपन से कई लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा काम करते आई है। एंड ऑफ कोर्स, आवाज की मिठास तो है ही। तो लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल, अमेजिंग, टैलेंटेड पलक मुच्छल। I can't imagine of anything more important than air, water, soil, energy and biodiversity. If we pollute the air, water and soil that keep us alive and well and destroy the biodiversity which allows the natural system to function, no amount of money can save us. So let us together protect, preserve and cherish it. जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा की जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ।
जो मुझे आ मिला सपने हुए सर फिरे हाथों में आते नहीं उड़ते हैं लम्हे मेरी निगाहें हैं तेरी निगाहों पे तुझे खबर क्या बेखबर जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरती हूँ कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ Wow, Palak, thank you for that absolutely mesmerizing performance. What a sweet, what a wonderful voice, and what a beautiful personality. Thank you so much. अब दोस्तों वक्त आ गया है एक बहुत ही important and pretty much official message का. So let us please welcome the Honorable Minister of Environment and also Information and Broadcasting, Shri Prakash Javadekar ji. दोस्तों, ये नए परिस्थिति में कार्यक्रमों की रचना भी नए तरीके से हो रही है. अब वेबिनार हो रहे, पहले सेमिनार होते थे, पहले लोग सामने होते थे, अब लोग अपने अपने घरों में है लेकिन सब जुड़े हुए हैं मन से और प्रत्यक्ष भी कनेक्टिविटी से. उसके कारण आज बड़े क्राउड के सामने हमारे विचार जाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है. और भामला फाउंडेशन 23 साल से अच्छा काम कर रही है. अच्छे काम को प्रोत्साहन देना हमारा काम है. वो बीच के सफाई से लेकर पर्यावरण के प्रति बहुत सारे नए कार्यक्रम करते हैं और सभी समाज के गणमान्य लोग और सिने जगत के लोग ये भी उससे जुड़ते हैं. तो ये काम करते रहना चाहिए और उस काम को आगे बढ़ाना हम सबका भी काम है, दायित्व है. मुझे लगता है कोविड का संकट का सामना देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर एकजुट होकर उसका सामना भी किया, उसमें एक दूसरे को सहयोग दिया. ये कार्यक्रम आज मुंबई में हो रहा है जहां अभी भी स्थिति सामान्य बननी बाकी है, लेकिन देश भर में पूरी बहुत सारी जगह स्थिति सामान्य लगभग हो गई है. तो वहां तो सारी गतिविधियां चल रही है. मुंबई में हम प्रण करें कि हम सारे नियमों का पालन करें और लोगों को एक दूसरे को मदद करें ताकि उनको नियम तोड़ने की बारी न आए. सबको बहुत बहुत धन्यवाद. And now, friends, it gives me great honor to introduce my very, very dear friend and also the Honorable Minister of State for Environment, Shri Babul Supriyo ji. इस वक्त पूरी दुनिया एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रही है. कोविड-19 की लड़ाई में हम सब लोग जो है एकजुट होकर लड़ रहे हैं. हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंडिया भी लड़ रही है. अलग अलग पर्सनालिटीज़ जो है, अलग अलग लोग जो है, अलग अलग संस्था जो है, वो भी कोविड वॉरियर्स के नाते लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को ये साहस दिला रहे हैं कि हम बहुत बड़े बड़े लड़ाई जीत चुके हैं धरती पर और ये लड़ाई जो है इसमें भी हमें जीत हासिल होगी. भामला फाउंडेशन एक ऐसा संस्था है जो बहुत सालों से, आसिफ भामला मेरा कई सालों से मेरे दोस्त है. जब मैं सिंगर होने के नाते बॉम्बे में ही रहता था, आसिफ भामला के बहुत सारे एंटरटेनमेंट शोज़ मैंने किया जो वो समाज के लिए करते थे, गुड कॉज के लिए करते थे, फंड रेजर के लिए करते थे. मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज आनंद हो रही है कि आसिफ भामला वो काम जो है ना ही सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि और जोश के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ आज निभा रहे हैं. अटर ह्यूमिलिटी ये कह सकता हूँ कि हम धरती के लिए जितना कर रहे हैं हमें और ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि यही हमारा घर है. और आसिफ भामला इस दिशा में जो काम कर रहे हैं
भामला फाउंडेशन के ज़रिए मैं उसका सराहना करता हूं और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की तरफ से जब इस अच्छे काम में उनका साथ देने की ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके साथ रहेंगे और उन्हें इस अच्छा काम में हम उनको जो है हम हेल्प करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बस चंद दिन पहले हमने वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमने सेलिब्रेट किया और एक बार और आसिफ भामला को कहना चाहता हूँ कि जब आप ऐसा इन्वायरमेंट के लिए जो अच्छा काम करते हैं, जब आप ये करेंगे, जब हमारी मिनिस्ट्री की आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम ज़रूर हैं। और हमारे सीनियर मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी भी आपको उनकी तरफ से प्यार भरा मैसेज दिया है और मैं भी उनके डिप्यूटी होने के नाते आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वी आर विथ यू, कैरी ऑन द गुड वर्क। I'm really excited to introduce this next person because he is young, dynamic, and supremely active. Let's hear a few words from the Honorable Minister of Environment, Protocol and Tourism in Maharashtra, Aditya Thackeray. Namaskar. This whole planet is about cycles and we have to keep changing our shapes, changing our nature. And I believe it's time for all of us to change our waste management habits to something that is better for our world. For everyone who's born in the 90s, we all remember we had Captain Planet, Air, Water, Earth, Fire. And the fifth one was Heart, which is taken as life force in our Vedic religion as Pancha Mahabhuta. The reason we used to take care of them and worship them was because they gave us everything. Mother Earth gave us everything. Today that we've started polluting them, I think it's time for us to go back into times and start worshipping them again, because only then do we care about something that we worship. Let's take care of Mother Earth as it takes care of us, because as youth, as we celebrate World Environment Day along with the Bhamla Foundation, I really am thankful as a Mumbaikar. I think it's a great movement for all of us. Thank you for those really important words. But now it's time for a message from Mother Nature, a real wake-up call. Take a look at this. फ्रेंड्स, अब तक तो हमें समझ आ जाना चाहिए होगा कि अगर हम अपने प्लैनेट और उसकी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट ना करें तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। Out of 8 million living species, 1 million are already extinct. That's how bad it is. But I really believe कि अगर हम अपना attitude, हम अपनी सोच बदलें आज ही से, तो हम अपनी future generations के लिए एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं, जो किसी wonderland से कम ना हो, a real heaven on earth. So speaking of heaven, something's missing on this show. Something heavenly, something divine. And what could it be apart from the voice of my dear friend and co-host Shan? So ladies and gentlemen, this time with an unplugged performance, please welcome the incredible Shan. Time for Nature, and a song that has been written by Swanand Kirkire himself, the man who wrote the song on biodiversity this year. It's Behti Hawa. So, Behti Hawa sa tha wo, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो. So let's bring back nature. Time for nature. Let's not lose any more organisms, creatures. बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ
उसे ढूंढो रे रे रा रे रे रा रा हो दे रे रा रे रा हो दे रे रा रे ओ कहाँ गया उसे ढूंढो हो कहाँ गया उसे ढूंढो Woohoo! That was amazing, Shan. As always, आपकी आवाज तो बहुत ही खूबसूरत है. I mean, hosting में मजा आ रहा है, लेकिन live performance की तो बात ही और है ना दोस्तों? सोफी, आपने तो मतलब मुझे इतना इम्पोर्टेंस दे दिया कि मैं फूले नहीं समा रहा हूँ. In our show, we have another very special person joining us. He really is a senior most anchor from this industry, a wonderful actor, a lovely human being, and associated with the foundation for many years. Please welcome Mr. Shekhar Soman. भाइयों बहनों, 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में आज हम बातचीत करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री रजनीश कुमार जी से, जो खास इस बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, जो बात करेंगे इस साल के थीम बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रजनीश कुमार जी इज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड मैन विद अ डिस्टिंग्विश्ड करियर एंड इलस्ट्रियस करियर, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ डिस्टिंक्शन. तो वो हमें बताएंगे आज की किस तरह से हम इस बायोडाइवर्सिटी के इक्विलिब्रियम, इक्वानिमिटी और इक्वालिटी को बनाए रख सकते हैं, और हमारा और हम सब का दायित्व क्या है इसके प्रति. रजनीश जी, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू. आपका इस मैं शो नहीं कहना चाहूंगा, ये जो हमारी मीटिंग है, ये जो हम लोग मिल रहे हैं एक दूसरे के सामने रूबरू हैं, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है. और उम्मीद करता हूं कि इस कोविड-19 के दौर में आप और आपके परिवार बहुत सुरक्षित और महफूज होंगे. आप रजनीश जी, ये मान के चलते हैं कि कोविड-19 से जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, और ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि इससे कुछ अच्छाइयां भी निकली हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से ये एक प्रकृति का अपने तरीके से एक पूरी मानव जाति को संदेश है जी. और जो इसका एक आर्थिक पक्ष है, वो तो नुकसान तो बहुत हुआ है, और लाइवलीहुड पे बहुत असर पड़ रहा है, बेरोजगारी है. लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत से ऐसे काम, जैसे कि गंगा और यमुना, जो काम 25 साल से हम लोग नहीं कर पाए सफाई, बिल्कुल, वो अपने आप हो गया. तो मैंने सुना है कि यमुना का पानी दिल्ली में बहुत साफ हो गया है. इतना साफ हो गया कि आप जाके पी सकते हैं उसे. यहाँ से जालंधर से आपको जो है हिमालयाज नजर आने, हिमालय दिख रहा है. सहारनपुर से आपको गंगोत्री के पहाड़ नजर आने लगे. तो ऐसा जो है 30 साल बाद देखने को मिला है. जी, जी, तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति का संदेश तो जरूर है कि जितनी, एक तो जिस ढंग से मानव जाति बढ़ी है जी, और उस प्रोसेस में मानव जाति ने अपने सर्वाइवल के लिए और विकास के लिए नेचर को इग्नोर करा है, उसका काफी एक परिणाम, और जो जिसको कहते हैं एडवर्स, उसका इम्पैक्ट वो प्लैनेट के ऊपर भी है और मनुष्य जाति के ऊपर भी है. जो प्रकृति है उसके साथ संतुलन बना के जीना हम लोगों को सीखना होगा. और ये बात बहुत दिन से, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के माध्यम से अवेयरनेस तरह तरह लोगों को बीच में फैलाने का जो प्रयास है, वो जैसे प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन है, ये सारी चीजें इसी चीज की तरफ, एक ही दिशा की तरफ ले जा सकते हैं कि विकास होना भी जरूरी है, लेकिन प्रकृति के साथ संतुलन बना के जीना वो भी बहुत जरूरी है. ये इसको हम अब किस तरह से इसी तरह से कायम रखें, हमारा क्या प्रयास होना चाहिए और आपकी क्या योजना है इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड एज अ चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका क्या क्या इसमें योगदान रहेगा? देखिए, भारतीय स्टेट बैंक का जो एक सबसे बड़ी चीज है कि हमने 3 वर्ष पहले सस्टेनेबिलिटी को
अपनी एक कोर वैल्यू के रूप में माना है जी। और सस्टेनेबिलिटी को कोर वैल्यू मानने के बाद जो एक हमारे अपने कार्यक्रम है उनमें बहुत तेजी आई। जो उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं आज की भारतीय स्टेट बैंक की 15 मेगावाट की विंड मिल हम लोगों के पास है, 20 मेगावाट के हमारे पास सोलर रूफटॉप है। जी। सारी शाखाओं को हर साल पेड़ लगाने का एक लक्ष्य दिया जाता है और उसे हम पूरा करते हैं। और जो ये नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट हैं उनके साथ जुड़ना, स्वच्छ भारत मिशन के साथ जुड़ना, तो ये हमारा क्लीन ट्रांसपोर्टेशन भी, आपका ग्रीन कार्ड लोन भी है जिसके तहत आप ये बढ़ावा दे रहे इलेक्ट्रिक कार्स। बिल्कुल, और हमने ये कार्बन न्यूट्रल होने का एक प्रण लिया हुआ है कि स्टेट बैंक को 2030 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे। उसके बाद अगर डिजिटल की बात आती है, जो कि अगेन एनवायरमेंटल फ्रेंडली रूप से काम करना, तो उसमें हमारा जो इस समय इंटरनेट बैंकिंग है, योनो का मोबाइल एप्लीकेशन है, ये बहुत तेजी से इनका विकास हुआ है। अभी जो हमारे योनो का मोबाइल एप्लीकेशन पे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके लिए हम लोग ग्रीन रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं कस्टमर्स को, और वो ग्रीन रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करके कस्टमर्स अपना जो है वो योगदान कर सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज में। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा एक जो योगदान है भारतीय स्टेट बैंक का। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ भामला फाउंडेशन के फाउंडर और चेयरमैन जनाब आसिफ भामला साहब जुड़ गए हैं, जिनका एक एसोसिएशन एसबीआई के साथ एक बहुत लंबे वक्त तक रहा है। वो एक समाज सेवक भी हैं और उन्होंने पर्यावरण को लेकर बहुत सारा काम किया है। आसिफ जी से हम दरख्वास्त करें कि जो भी सवाल वो रजनीश जी से पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, जो कहना चाहते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में वो कह सकते हैं। नमस्कार रजनीश जी। नमस्कार रजनीश भाई। वेरी नाइस टू सी यू, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम। बड़े वक्त के बाद उम्मीद है आप चुस्त तंदुरुस्त हर तरीके से ठीक-ठाक हैं जैसे आप दिख रहे हैं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा हमें अवसर मिला है कि इस बार फिर से पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो है एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। इस संस्था की ब्यूटी, ये भारतीय स्टेट बैंक की ये ब्यूटी मैं कहूंगा या ये शान कहूंगा कि इनके आखिरी स्तर का जो कर्मचारी है उनसे लेकर आज हम देख रहे हैं कि स्वयं रजनीश कुमार जी जो चेयरमैन है, जो इतने व्यस्त है, अपने इतने व्यस्त समय में समय निकाल कर भी एक पर्यावरण के एक अच्छे काम के लिए उन्होंने अपना समय दिया। रजनीश जी, मैं मनपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आसिफ भाई। Now, one of the ways to preserve biodiversity and help save the environment is by sustainable living. आपने ये terminology बहुत सुनी होगी, sustainable living. What it essentially means is finding ways to use less of our resources and just be perhaps more clever with how we do it. And to tell us more about that, I'd like to invite Mr. Vijay Karia of Raven Cables to explain sustainability to us in more clear terms. विजय कारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। जैसा कि मालूम है आपको कि इस साल का जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, वो है बायोडाइवर्सिटी। यानी हम उन सब प्राणियों की बात कर रहे हैं जो धरती पे हैं, धरा पे हैं, नभ में हैं, समुद्र में हैं, हर जगह, और सबको जीने का हक है। और आप हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जब या कोई भी इंडस्ट्री जब आगे बढ़ती है तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे पड़ता है, ये तो आप मानेंगे। तो जब हम सस्टेनेबल ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दो चीजें तो जुदा जुदा हैं, दे पोल्स अपार्ट। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू शेखर जी फॉर हैविंग मी ओवर। कमिंग स्ट्रेट टू योर क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी मेरे हिसाब से ये है कि जियो और जीने दो। हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे स्पीशीज थे, जीव जंतु थे, एनिमल्स थे, जो कि आज मात्रा में बहुत कम हो गए हैं। A few decades ago, we had about 60 million animals and species and various forms of organisms, etc. on the planet. Now today, I think they say only about 8 million or 80 lakhs are
We have killed a lot of animals. We've killed a lot of species. Our human body also has a lot of bacteria within us, and perhaps more than the number of human cells, we have more bacteria than human cells. So ultimately, biodiversity means that we need to live ourselves, but let everybody else, all the organisms around us live, and let them thrive. आपके हर कार्य का, आपके हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, उसका एक असर होता है दुनिया में, समाज में। उसका ख्याल रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, हमें और मानवीय बनना है, हमें एक बेहतर इंसान बनना है, हमें एक कंसिडरेट इंसान बनना है। हमें न सिर्फ दूसरे इंसानों के बारे में, जानवरों के बारे में, बल्कि पर्यावरण के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हर क्षण, हर पल, हर लम्हा सोच के आगे बढ़ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, it's that moment. Time to unveil the anthem of the year, featuring some of our most incredible performers from our country. Yes, Sophie, it gives me a lot of honor and you know, a lot of hard work was put in to create this album. Not just you know, as a song which I composed, of course, Swanand wrote so beautifully, and so many singers came together to do this, but also the video, which is very special, especially, you know, in times like this where, you know, you have to shoot from home and compile it together and yet create such, I mean, I can go on talking, लेकिन I think कुछ चीजें, कुछ suspense रखते हैं, कुछ surprises रखते हैं, लोग देखेंगे, खुद enjoy करेंगे. So दोस्तों, this is it. धक धक धरती. क्या आप लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं और वो किससे बनता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस धरती पर रहने वाले, आसमान में उड़ने वाले, समुंदर में तैरने वाले सारे जानवर, पंछी, पेड़, पौधे सब साथ में रहकर इस बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं। और ये बायोडाइवर्सिटी जो धरती का दिल है, आज हमसे कुछ कहना चाहती है। आप लोग सुनोगे? तो सुनो। खुद जी लो सबको जीने दो, खुद जी लो सबको जीने दो, मेरे लिए जरूरी सब। ओ धरती का दिल क्या बोले, धक 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 धक। चींटी हो या हाथी हो, सब मेरे जीवन साथी हो। अंबर चिड़िया पानी मछली बातें यही दोहराती हो। घास फूस या फूल और तितली, जंगल नदिया और पर्वत बोल रहे हैं मिलकर सारे, ओ बोल रहे हैं मिलकर सारे, ये और वो और सब। धरती का दिल क्या बोले, धक 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 धक। शेर है राजा पर नन्हे कीड़ों से जंगल बनते। एक मधुमक्खी गुनगुन करती, मौसम के चक्कर
कुछ कॉरल्स की जंजीरों से महासागर रहे काबू में। बर्फ कहीं जो पिघले जरा सी, नदियाँ और झरने बहते, इनसे हम हैं और जहां है, हो इनसे हम हैं और जहां है, समझेंगे हम कब। धक 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 धरती का दिल क्या बोले, धक 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 धक। ओ खुद जी लो सबको जीने दो, मेरे लिए जरूरी सब। धक 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 धक। Fun, wasn't it? I loved it and I'm sure you loved it too. So please everybody अपने social media pages पे share करो और link WhatsApp करो, forward करो अपने सारे दोस्तों को। हमारा सुंदर planet बचाने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना कि एक खूबसूरत melodious message आप सबको भेजें। Taking a first step towards saving the environment. It's so important and it is a serious business. And speaking of serious business, हमारे जो अगले guest हैं वो हंसी मजाक को भी काफी सीरियसली लेते हैं। जी हाँ, कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस फॉर हिम, लेकिन उसी हंसी मजाक में वो सीरियस बात भी कह देते हैं। Let me tell you guys, he has a real heart of gold and he's been associated with the Asif Amla Foundation for the last 10 years. He always steps forward, be it for kids with special needs, be it for plastic ban, air pollution, and he was even awarded by the Ministry of Environment for the song Hawa Aane De this year. He is so special and everybody loves him. Ladies and gentlemen, please welcome my friend, the one and only Kapil Sharma. It's so good to see you, Kapil. Whoa. Thank you so much. Thank you, Sophie. It's good to see you after so long. और कैसा मैंने लग खुद रहा ही है, लिए कोई तालियां आपका बजा ली। इंट्रोडक्शन कर रहा है? मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने खुद ही तालियां बजा ली, बिकॉज हमें आदत है ना हमेशा स्टूडियो में शूट करने की और लोग बैठे रहते हैं, पर खैर ये चीजें भी देखनी थी लाइफ में हमें और इस तरीके से मुलाकातें होंगी। I चलो know. ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। आप कैसे हो सोफी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ही की तरह घर में लॉकडाउन में हूँ। आपकी ये कुर्सी तो बहुत अच्छी लग रही है और मैंने भी एक मेकशिफ्ट स्टूडियो बना रखा है घर में। तो बस क्या यही कर एक रहे हो कुर्सी है वैसे? मेरे घर में, ये मैंने रखी इसीलिए ताकि लाइव जा सकूं, बाकी तो मेरे दूसरे मूड़े रखे हुए हैं जो लकड़ी के होते हैं ना। थैंक यू मुझे ये बताओ, सोफी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है और आप जी। वैसे भी आसिफ बामला फाउंडेशन के साथ 10 साल से एसोसिएटेड जी। हो। तो पहले तो ये जो हमारे लोग ये देख रहे हैं और जो सब ये घर पे बैठ के देख रहे हैं, आप कहोगे तो शायद ज्यादा सीरियसली लेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट इज एनवायरनमेंट डे एंड व्हाई वी हैव टू सेलिब्रेट इट एंड व्हाई वी हैव टू स्प्रेड द मैसेज। ट्रू सोफी, जो आपने कहा अभी एनवायरनमेंट डे, सबसे पहले तो मैं भामला फाउंडेशन को थैंक यू कहना चाहता हूँ, आसिफ भाई को थैंक यू कहना चाहता हूँ, बिकॉज कभी कभी हम लोग अपनी लाइफ में हम लोग कभी कभी अपने प्लेनेट के लिए या सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कभी कि क्या करें। जैसे मैं बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे आसिफ भाई एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सो मैं बड़ा थैंकफुल उनका कि उनकी वजह से ही मैं थोड़ा बहुत जितना भी कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ और ये उनकी वजह से है। सो थैंक यू सो मच भामला फाउंडेशन वंस अगेन। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये लगता है कि सोफी, जैसे आजकल ये हो गया ना कि मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, फ्रेंडशिप डे हो गया, एनवायरनमेंट डे, अगर एक हद तक देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ एक ही दिन में ये होना चाहिए। बट हाँ, उसका एडवांटेज ये भी है कि जब स्पेशली हम तो अपने 365 दिन अपनी माँ से प्यार करते ही है ना, रोज उनसे बात करते हैं। मैं आपको भी देखता हूँ सोफी, आप अपनी मम्मी के साथ काफी अटैच्ड है। सो एक स्पेशल फील कराना बड़ा जरूरी होता है, लेकिन मदर्स डे पे तो हम अपनी माँ को बोल सकते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को, प्लेनेट को हम लोग कैसे सेफ रख सकते हैं या कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये बहुत सोचने की बात है। और खास करके अब इस पीरियड में, जबकि ये जो कोरोना जो है पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और पूरी दुनिया काम कर रही है, मुझे कभी कभी ये लगता है पता नहीं ये नेचर जो है, जो हमने नेचर का बुरा हाल कर रखा है लोगों ने, मुझे लगता है ये नेचर हमें शायद साइन दे रही है। बिकॉज मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब
लास्ट टू लास्ट ईयर मैं आयुर्वेदा ग्राम है बेंगलोर में, तो मैं वहां पे गया था अपने ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट मीन्स वो लोग आयुर्वेदा ट्रीटमेंट होता है और उसमें आप योगा करते हो, आप मसाजेस होती हैं उनकी। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर गॉडविन, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड बन गए। वो मुझे बता रहे थे कि आयुर्वेदा जो है, तो मैं इसलिए आयुर्वेदा की बात कर रहा हूँ बिकॉज ये चीजें लिंक्ड हैं आपस में, जी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे जो भी उगता है धरती पे, उन्होंने मुझे ये बताया कि आयुर्वेदा में तकरीबन हमें 4-5 हजार चीजों से ज्यादा नॉलेज नहीं है पूरे वर्ल्ड वाइड आयुर्वेदा में, कि कौन सा पौधा किस चीज के लिए काम करता है। लेकिन उन्होंने ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई भी पौधा उगता है, कोई घास उगती है, ये सब ह्यूमन बींग्स की क्योर के लिए है। ऑक्सीजन तो हमें सभी पौधे देते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं, कुछ पर उन्होंने ये बताया कि हर एक चीज, अगर कोई भी छोटा सा फूल कहीं पे उगा हुआ है, उस आयुर्वेदा में ये बताया गया कि हर जो एक प्लांट है या फूल है, जो भी धरती पे चीज उगती है, तो ये हम लोगों को अगर कोई भी भगवान ना करे प्रॉब्लम है, तो उसको क्योर करने के लिए है। तो जी। बहुत सारी चीजें तो आयुर्वेदा ने जो है वो समझ ली हैं। पर ये देखिए कितना खूबसूरत चीज है कि ये नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए। एलोपैथी ये सब तो बाद में शुरू हुई, पहले तो बिल्कुल। आयुर्वेदा ही था। और पुराने हकीम भी जब हम लोग देखते हैं पुरानी फिल्में या पुराने ग्रंथों में भी पढ़े, तो ऐसे ही इलाज होता था। तो प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं गिफ्ट में, लेकिन हम लोगों ने उसका ध्यान नहीं रखा है। बस यही है कि जब हम ज्यादा बोलते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों को लगता है ज्यादा ज्ञान बांट रहे, पर सच्चाई यही है कि हमें बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है इस चीज को। और हालांकि बहुत सारी जगहों पे, या जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली का आपको याद होगा, दिल्ली में एक टाइम पे पोल्यूशन इतना बढ़ गया था कि उन्होंने गो ग्रीन दिल्ली, दिल्ली पूरे ग्रीन दिल्ली के नाम से कॉन्सेप्ट शुरू किया था। और उन्होंने सब उस समय जो गैस पे कर दिए थे व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो थी, सब कुछ जी, बहुत जी। सारी चीजें कर भी रही हैं, हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं, लेकिन और ज्यादा इसको बढ़ाने की जरूरत है और ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है जनता को। और मेरी जनता से यही दरख्वास्त है कि आप इसको बिल्कुल ही उतना ही सीरियसली लें जितना आप अपने बच्चों की केयर करते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, आई थॉट दिस वुड एक्चुअली बी गुड फन। मैंने आज अपने कुछ फॉलोअर्स से पूछा कि अगर उनको मौका मिलता तो वो कपिल शर्मा से क्या सवाल पूछते। अच्छा। हाँ, मैं बहुत तेज हूँ सर, आपसे ही सीखा है सब कुछ। तो ये कुछ फन सवाल थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जी प्लीज। अब ये तो एस्टैब्लिश हो गया कि आप दीपू को मिस कर रहे हैं, तो चलो उस पे बात पे आएंगे, इस बात पे नहीं, बात। वो तो देखिए शादीशुदा है, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सब आगे बढ़ चुके हैं, तो और अब तो लॉकडाउन भी चल रहा है। अच्छा, here we go। तो ये है राजवीर कियारा। मैंने ये नाम लाइफ में, राजवीर कियारा, शायद वो कियारा अडवाणी से प्यार करते, मुझे पता नहीं, उनका नाम ये है। और उन्होंने पूछा है, who would you like to be in lockdown with apart from your wife and baby? अपार्ट फ्रॉम, मैं दिल से बोलूं तो अभी मैं किसी और के साथ लॉकडाउन में नहीं जाना चाहूंगा। सो मैं अभी बेस्ट कंपनी में हूँ। मेरी बेबी और मेरी वाइफ जो है इस समय बेस्ट कंपनी है। लेकिन हाँ, अगर शादी नहीं हुई होती तो मेरी लिस्ट में है 10-12 लोग जिनके साथ मैं लॉकडाउन में जाना चाहता। 10-12 बड़ी लंबी लिस्ट है। ओहो, क्या करे, इंसान की जो कहते हैं ना, लालच नहीं खत्म होता। इंसान को भगवान जितना देता रहता है वो और सोचता रहता है। तो हाँ, राजवीर जी, ऐसे सवाल आप एक शादीशुदा आदमी से तो मत ही पूछिए, पर्सनली पूछ लीजिए। इस समय लाखों लोग हमें सुन रहे हैं, तो आप अगर आप कभी मुझे मिलेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं लॉकडाउन में किनके साथ रहना चाहता। ये ऑफ फिलहाल कैमरा मैं भी पूछूंगी दोस्तों, मैं भी पूछूंगी, छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल, इनका हैंडल है वो वाला लड़का। अब मुझे पता नहीं कौन सा वो वाला लड़का, वो वाला लड़का है उनका इंस्टाग्राम हैंडल। और उन्होंने पूछा है कि when you were dating गिन्नी, did she get annoyed when you used to flirt with other actresses in your show? तो नहीं, एक्चुअली गिन्नी को कभी बुरा नहीं लगता है, बिकॉज उसको भी पता है कि इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब। और पर हाँ, ये मैं इतना शाना हूं ना, मैंने कभी आज तक पता नहीं चलने दिया कि ये मेरे पार्ट ऑफ जॉब है। वो तो है, चलो शो पे करना ही होता है, लेकिन कभी कभी मेरा दिल से भी निकल जाता है। तो वो उसको मैंने कभी आज तक पता नहीं चलने दिया। नहीं, मुझे पता था आज हम लाइव आने वाले, मैंने उसको अनायरा को जगा के उसके हाथ में दे दिया है, तो वो उसमें बिजी है। देखी लेगी कभी ना कभी।
नहीं, फ्लर्टिंग तो आपकी माशाल्लाह मक्खन की तरह है, पता ही मैं नहीं हेल्दी चलता। हेल्दी हेल्दी फ्लर्ट करता हूँ मैं। सोफी जैसे बोलते हैं ना कि एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो वैसे मेरी जो फ्लर्टिंग है ये गुड वाली है। अच्छा, ये गुड यार वाली है। अच्छा सोफी, सही से बताना, आप जब आप इतनी अभी प्यारी लग रही हो, आपके पीछे फूल पड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादा खूबसूरत आप लग रही हैं, तो अब देखो चेहरे पे ना एकदम से रौनक। लड़कियों को नहीं अच्छा लगता है क्या जब लड़के फ्लर्ट करते हैं? हेल्दी इतना फ्लर्ट, अच्छा नॉट मैं। लगता है, इतना अच्छा लगता है, लेकिन सारे लड़कों को नहीं आता है ना फ्लर्ट करना। हाँ, वो कई बदतमीज होते हैं, तो वो थोड़ा वो बदतमीजी वाला नहीं। हाँ, वही अगर तो मैं आपको कह कोई रही हूँ, खूबसूरत आपकी लग रहा है उसको फ्लर्टिंग कॉम्प्लीमेंट करिए आप। मक्खन वाली है ना। आप इतना कुछ कह देते हो इतने प्यार से कि बस बुरा भी नहीं लगता, इतना अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली चेहरे पे ऐसी स्माइल आ जाती है। वाओ सोफी, लॉकडाउन खुलने दो, पहला एपिसोड मैंने आपके साथ करना है अब। ये अगला सवाल था। ओह मेरे पास जो अगला सवाल है ये है, जी, प्रंजल सैनी एंड केविन वटसरिया पूछ रहे हैं कि ये दो क्या नाम सवाल बताया उन्होंने आपने? पूछे हैं। प्रंजल सैनी एंड केविन वटसरिया। ये इंडियन है? मुझे पता नहीं, लग तो रहे हैं इंडियन। एक तो मुझे पता नहीं, ये समझ में नहीं आता कि ये जो जैसे आपने बताया वो वाला लड़का, हाँ, फिर ये वाली लड़की, ये लोग अपने नाम पे क्यों नहीं बनाते अपने ट्विटर हैंडल या इंस्टा हैंडल? मुझे लगता है इनके पास 10-10 अलग-अलग आईडी है ना, जैसे बहुत सारे लोगों के पास हाँ 10-10 अलग नंबर है, तो अलग-अलग हाँ, काम के लिए अलग-अलग हैंडल है इन सबके पास। जैसे मैंने बताया था ना, मीका ने एक अलग अपना बना के रखा आईडी। तो जो लोग कभी कभी होता है ना कि नीचे कई गालियां भी दे देते हैं, हेटर्स तो होते ही हर जगह, तो उसने एक अलग मंगल सिंह के नाम से अपना आईडी बना के रखा है। तो जो जो उसको गाली देता है फिर वो मंगल सिंह के नाम से, मतलब उनकी सेवा मंगल करता है। सिंह। नहीं, अब मंगल उनको सिंह वो भी नहीं बदलना एक्चुअली। पड़ेगा। हाँ मतलब कुछ तो नाम है, मुझे इतना पता है, तो मैंने, सॉरी मीका अच्छा, बाजी, आपका सीक्रेट रिवील कर दिया मैंने। ओहो, अच्छा। एनीवे, ये जो है प्रंजल और केविन, इन्होंने 2 जी, सवाल पूछे हैं। एक तो, क्या आपने कभी सोचा था कि आप सोफी से बात करेंगे? तो जिनका ये सवाल है मैं उनको पहले बता देना चाहता हूँ कि मैंने सोफी के साथ बहुत सारी बातें की हुई हैं पहले भी, और हम काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। सोफी भी मुझे नहीं जानती थी, जब से मैं सोफी को जानता हूँ, बिकॉज 2000 में जब इनका, जैसे उन्होंने बताया, एल्बम आया। सोफी आपको नहीं याद होगा, हमारा एक शो था जयपुर में साथ में, आपको अच्छा, याद नहीं है, और आप आई, आपने लेदर पैंट्स पहनी थी, लॉन्ग शूज, जैकेट, और ये वो बाल वाल पूरे फुल, मतलब क्या बात लग रही थी हमेशा की तरह। और मेरी परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी, मैं उतरा ही था स्टेज से, और मैं पूरा स्वेटिंग वेटिंग हुई, और मैं ये दुख रहा हूँ, पागलों की तरह खड़ा हूँ, और एकदम से आपकी एंट्री हुई। तो मुझे लगा हाय, अभी मैं सोफी से बात करूंगा, आप इतनी तेज आई, मुझे मौका ही नहीं मिला बात करने का। आप सीधी स्टेज पे निकल गई, उस समय आपकी परफॉर्मेंस थी। मैंने कहा यार चलो, कोई दिन आएगा। हाय! एक और सवाल है। जी अपना अच्छा नहीं, 2 और सवाल है, ये अच्छे सवाल हैं। अपना जी, राज मनीष ने पूछा है कि आप क्या घर से कुछ ऑनलाइन कॉमेडी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं। राज और मनीष, सबसे पहले राज मनीष, मैं सबसे पहले तो आपको पहले ये कहना चाहूंगा कि महंगाई के जमाने में जो आपने दो दो नाम रखे हुए हैं, एक करें पहले तो इसका, और किसी का काम आएगा दूसरा नाम। तो हाँ, दूसरी बात ये, हाँ अच्छा, घर से एक्चुअली, हाँ अगर ये लॉकडाउन ज्यादा लंबा चला तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मैं घर से जरूर प्लान करूंगा, बिकॉज मैं भी नहीं बैठ सकता, और मैं अपने काम को, सोफी, मैं अपनी भी और आपकी भी बात करूं सोफी, हम लोग आर्टिस्ट हैं, और मुझे लगता है कि हमारा जो काम है, हम लोग जो आर्टिस्ट हैं, हमारा काम, हमारा शौक है सबसे पहले तो जो हमें करना अच्छा लगता है, जैसे आपको गाना अच्छा लगता है सोफी, जी। और अगर चलिए ईश्वर की बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आप इतनी पॉपुलर हैं, अलग अलग पूरी दुनिया में शोज करती हैं, लेकिन अगर आप शो नहीं भी करती तो घर पे भी आपको गाना अच्छा ही लगता है, बिकॉज यू लाइक सिंगिंग। तो अगर वही काम आपको कोई बोल रहा है कि यार ये काम हमारे लिए स्टेज पे कर दो और पैसे भी मिलेंगे, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है? इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि जो लोग हमें इतना प्यार करते हैं, वो लोग भी बोर हो रहे हैं घर पे, आई नो, लेकिन अगर ये लॉकडाउन ज्यादा लंबा चलता है तो मैं कुछ ना कुछ जरूर प्लान करूंगा, और मैं और सोफी साथ में प्लान करेंगे। Yes! ग्लैमर ग्लैमर बना रहेगा शो में। मैं ना अभी 2-3 मेरे इंटरव्यू हुए, सबने मुझे गाना गाने को बोला, तो मेरे एक ही गाना दिमाग में आता है आजकल ना, बिकॉज वो आजकल के टाइम पे बड़ा सूटेबल सॉन्ग है, हमेशा ही रहा है एक्चुअली। राज कपूर साहब की फिल्म का गाना था, किसी की मुस्कुर, आपको आता है? आता है? थोड़ा थोड़ा प्लीज आप शुरू करो ना सोफी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी किसी का का दर्द दर्द मिल मिल सके तो ले उधार, किसी के किसी के वास्ते वास्ते हो तेरे तेरे दिल दिल में में प्यार, प्यार जीना इसी का नाम नाम है। है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। आगे मेरे को आता नहीं है, पर हाँ बड़ा मेरे जो खूबसूरत गाना है। प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें है एतबार। एतबार, जीना इसी का नाम है। So बहुत ही खूबसूरत गाना। nice, बहुत सही गाना है थैंक यू वैसे, सोफी, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू। लॉकडाउन मुझे में जीना इसी का नाम जी है राइट, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। थैंक यू कपिल। अब जाने से पहले पिछले साल तो आपको अवार्ड भी मिला था फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर ऑल द अमेजिंग वर्क यू आर डूइंग एंड फॉर हवा आने दे। सो जस्ट जी। समथिंग अबाउट यू बीइंग सो इंस्पायरिंग व्हेन इट कम्स टू द एनवायरनमेंट। सबको एक मैसेज दीजिए आप अपने स्टाइल में। लोग वैसे ही घर पे मुंह लटकाए बैठे हैं, जरा उनको अपने स्टाइल में थोड़ा सा मोटिवेट करें ताकि वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें। बिल्कुल सोफ़ी, मुझे बिकॉज़ क्योंकि आज हमारा जो मकसद है आज लोगों के सामने लाइव आने का, वो एनवायरनमेंट डे के मौके पे था और एनवायरनमेंट की ही बात ज़्यादा आज हम लोग करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा आप सबसे, मेरी विनती है आप सबसे हाथ जोड़ के कि इसको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ना लें। और भगवान ने जब ये दुनिया बनाई थी उसने सबके लिए बनाई थी, उसमें जीव जंतु भी हैं, उसमें पेड़ पौधे भी हैं, उसमें पशु पक्षी भी हैं, लेकिन इंसान को थोड़ा ज़्यादा दिमाग दे दिया कि चलो डेवलपमेंट होगी, तो इंसान ने ये समझ लिया कि सारा हमारा ही है। तो भाइयों बहनों बच्चों जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, सो प्लीज़ आप बिकॉज जब भी हम किसी भी देश का इतिहास आप निकाल के देख लो, आप हिस्ट्री चेक करके देख लो, फैक्ट्स देख लो, रेवोल्यूशन तभी आया जब हम सब ने इंडिविजुअली उस चीज़ को अपनाया है। अगर हम इंडिविजुअली हम लोग अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है और हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, हमें इसके लिए काम करना है, तभी जो है वो रेवोल्यूशन आएगा। और हम हर बात के लिए हम गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग प्रण लें, रेजोल्यूशन लें कि हर साल, जैसे मैंने शुरू किया कि मैं अपने बर्थडे पे पेड़ लगाता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं। अभी हमने लास्ट टाइम तो जैकी श्रॉफ साहब ने हमें चैलेंज दिया था ये पौधे लगाने का, तो हमने अपने जहाँ पे हम लोग शूट करते हैं वहाँ पे इर्द गिर्द सब जगह पौधे लगाए, जहाँ पे हम अपने ऑफिस में काम करते हैं सब जगह पौधे लगाए। सो एक किक चाहिए होती है, एक थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होती है, जो हमारे सीनियर जो हैं या जितने भी लोग एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं वो उनसे हमें मिलती रहती है और आगे हम आपको वो वाला ज्ञान पेल रहे हैं। सो इस बात को अब सीरियसली लेना पड़ेगा। और मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है सोफ़ी कि ये जो कोरोना का जो कहर बरप रहा है सारी दुनिया पे, तो ये इसका भी कहीं ना कहीं कुदरत से लेन देन है। आप देखो, अगर हमें आज आप सब क्या बोलते हैं कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुदरत का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहली तो चीज़ यही है कि जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, आज हम लोग सांस ले रहे हैं, ज़िंदा हैं, तो यही हमें पेड़ों से मिल रही है, नेचर से मिल रही है। सो अभी तक लोगों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है कि नेचर का कितना बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में। तो आई एम श्योर कि जो भी काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग लोग कर रहे हैं, अलग अलग सरकारें कर रही हैं, हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, भामला फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम सब भी आपके सिपाही हैं, हम आपके साथ लगे हुए हैं। और बस ज़्यादा ज्ञान ना पेलते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण की रक्षा करें, और पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा। और कपिल आपसे पूछूंगी जी। मैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जी। रूल हो गया है, तो अभी आप कैसे मैनेज करोगे? इतनी प्यारी प्यारी हॉट एक्ट्रेसेस आती हैं आपके शो पे, अब तो आप गले भी नहीं मिल पाओगे। वर्चुअल हग सोफी, वर्चुअल हग जैसे कि हमें करना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो ह्यूमैनिटी के लिए, जो भी बेटरमेंट के लिए चीज़ें हैं, शायद हम सबको, जैसे आज से पहले हमने कभी सोचा था सोफी, आज से 10 साल 15 साल पहले, कि कभी ऐसा भी होगा कि हम लोग फ़ोन पे बात करेंगे और एक दूसरे को देख भी पाएंगे। बिल्कुल। और वो चीज़ आई, उसकी इन्वेंशन हुई और हमने अपनी लाइफ में उस चीज़ को अपना लिया। आज हम लोग कितना वीडियो कॉल यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी हमारी लाइफ का पार्ट बनने वाला है आगे चल के क्या बन ही गया अभी। सो पूरी प्रिकॉशंस लें लोग, और हाथ मिलाना तो बंद ही कर देना चाहिए। बिकॉज अगर किसी की गलती है, किसी की बेवकूफ़ी, उसके लिए किसी इनोसेंस
किसी इनोसेंट आदमी को बेचारे को क्यों इन्फेक्ट करें? तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आई थिंक, और इसी के साथ ही यू हैव टू लिव विद दैट। की बीवियां इकट्ठा होके उन्होंने ये प्लानिंग की है ताकि कोई किसी से हाथ ना मिलाए। वाह सोफी, आप तो परफेक्ट हो हमारे शो के लिए। आपके बस उसके अंदर रह के, शैडो के अंदर रह के थोड़ा बहुत। अरे बहुत मजा आ रहा है सोफी आपसे बातें करके। आप हमारे शो में आए, 4 चांद लग गए। Thank you for, as always, making everybody smile and giving important ज्ञान, and for everything that you do for the environment and for the Asif Bhamla Foundation. बहुत बहुत शुक्रिया। और Thank you, बस आप Sophie. गिन्नी और अनायरा खुश रहिए, सलामत रहिए। Thank you, thanks a lot, और थैंक यू वंस अगेन सोफी और भामला फाउंडेशन और जितने भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, और जी हाँ, जो भी बातें हमने सीरियस नोट पे की हैं एनवायरनमेंट को लेकर, प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा, और हम सबको ही ये मिल के करना पड़ेगा, और हम सब साथ हैं तो हम कर सकते हैं। Absolutely. Thank you so much. Lots of love. Thank you Sophie. Sure. Thank you Sophie. Thank you so much. Lots of love always. Thank you. Bye. और हाँ, वो जो 10-12 एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ आप लॉकडाउन में रहना चाहते थे, उसके बारे में बाद में बात करें। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। जब हमारे साथ कपिल शर्मा हो, वाकई में दोस्तों हमारी जिंदगी में इतना सारा स्ट्रेस है, इतनी सारी मुश्किलों से हम गुजरते हैं। एक पल भी अगर हंसने का, खिलखिलाकर खुश होने का मौका मिल जाए तो कभी गंवाना नहीं चाहिए। एंड जहां कपिल शर्मा हो, ऐसे बहुत सारे हमें मौके मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे पल, बहुत सारे ऐसे लम्हे मिलते हैं जहां हम सब दुनिया भर की टेंशन को भूलकर एंजॉय करें। पिछले 3 सालों से हम अलग अलग टॉपिक्स पर जो गाने बना रहे हैं, तो मैं कंपोज कर रहा हूँ, स्वानंद किरकिरे जी वो लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स भामला फाउंडेशन इज चैंपियनिंग द कॉज, लेकिन विजुअली जो इन गानों को अट्रैक्टिव बना रहे हैं, कमाल के हुक स्टेप, डांस स्टेप्स के साथ, दैट इज द वन एंड ओनली शामक दावर। ऑफ कोर्स यू आर अवेयर ऑफ दैट। तो शामक दावर अब हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं। मैं क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस परफॉर्मेंस में जो परफॉर्म करेंगे उनके साथ वो दुनिया के अलग अलग कोनों में स्थापित है, लेकिन वहां से एक साथ in tandem together they are going to be performing and dancing. इससे better biodiversity का example नहीं होता, जहां हर एक को अपना perfect step देना है, and when they come together you create a beautiful picture, and that's exactly what's going to happen. So guys, let's watch Shamak Davar and his global dance team performing on Thak Thak Dharti. खुद जी लो सबको जीने दो, खुद जी लो सबको जीने दो, मेरे लिए जरूरी सब ओ धरती का दिल क्या बोले, धक 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 धक। चींटी हो या हाथी हो, सब मेरे जीवन साथी हो। अंबर चिड़िया पानी मछली बात यही दोहराती हो। घास फूस या फूल और तितली, जंगल नदिया और पर्वत, बोल रहे हैं मिलकर सारे, ओ बोल रहे हैं मिलकर सारे, ये और वो और सब। धरती का दिल क्या बोले, धक 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 धक। शेर है राजा पर नन्हे कीड़ों
से जंगल बनते। एक मधुमक्खी गुनगुन करती, मौसम के चक्कर चलते। कुछ कॉरल्स की जंजीरों से महासागर रहे काबू में। बर्फ कहीं जो पिघले जरा सी, नदियाँ और झरने बहते। इनसे हम हैं और जहां है, हो इनसे हम हैं और जहां है। समझेंगे हम कब। धक 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 धरती का दिल क्या बोले। धक 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 धक। Wow, Shamak has really outdone himself today. Thank you so much, Shamak, and thank you to everyone who participated in our show. That brings us to the end of it. Lekin I hope, apart from being entertained, aap sabko ek bahut important message mila, and that is that we really do need to save our environment, and we need to do it now. Ladies and gentlemen, please, please, please ban the use of plastic. Plant more trees and use only what we need from nature. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Considering everything that we've all been going through over the past few months, it's more important now more than ever. साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आसिफ बामला फाउंडेशन का, as well as the United Nations and the Ministry of Environment. And I also really want to thank Hungama Digital Media Entertainment for supporting our cause and for letting me be part of this incredible experience and this wonderful show. And thank you to you so much, Shan, for co-hosting with me. बहुत मजा आया, ये बहुत unique था to host a show like this. Normally हम साथ होते हैं, लेकिन फिर भी महसूस होता है कि हम साथ ही हैं. Bilkul, Sophie, you know, you have such an infectious and such a fantastic personality. Though we're doing this online, फिर भी I can feel your presence, honestly. और बहुत मजा आया दोस्तों, साथ इतने कमाल के performances भी आपके सामने आए. And all of them, I really have to thank all of them from the bottom of my heart. All our performers who came here and sang their hearts out, performed for you, and made this day special. Environment Day, dosto, it is a day that really, really should not just be celebrated once a year. We have to keep this ongoing activity. And remember, as the theme of the UN has been this year, time for nature. So always find time for nature and be a part of this endeavor and bring nature back into all our lives. Thank you so much once again. Thank you, Sophie. Thank you, everyone. And you guys, please stay home, stay safe, be responsible, not just for yourselves, but for everybody around you and for the environment. Or Jessica Shan ne kaha, remember, it's time for nature.